Welcome, welcome, welcome. So we are in the third day of the show. The third warm-up session. So Rajeshwari, how was your last 2 days? It's great, Pinaki. How was it different? I'm in awareness today. I just when I went to take my daughter, younger one, from the school. After coming home from my own office, I said I don't feel. I'm feeling irritated. Then Uh-huh. once again, it struck my mind. I'm not feeling so good to pick you. So such this thing is happening means now I'm in alert mode. I don't have to use these words that I can say. My mind is reminding me Superb. And how about knowing, understanding, realizing, getting? that this was a new thing for me. This was a new thing, and when I will use in my when I'm teaching to my students. I will ask them in which mode they are, so that I find very good for anyone. It's not for the only children, it's for everyone. Absolutely. It's like confirming the communication, whether it is going to the other side the way you Yeah. want it. That's Yes. most Yes. important. Hmm. Okay, so you really need to get that whether the other person is getting the communication or not. Yes. Very important. Otherwise क्या होगा कि you will be in a thought कि शायद लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ और often ऐसा होता है कि whatever I said that person actually got it, so I don't need to repeat it or I need to reiterate it, Hmm. and that is where we create all these challenges. कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप उसको पूछते हो ना तो बोलते हैं and this Yes. is Yes. a very Most of dangerous the answer. time. Yes. Yes. In typing also we write HMM. So you really do not know what does that answer means. You know, का मतलब कुछ भी हो सकता है. And it is better not to assume and actually ask, clarify. Like what? So what did you get? You know, so after asking the question, did you get it? The next question is, what did you get? What did you get? And तो पता चलेगा if that person exactly repeats that that person got, then you know that okay, actually he got it. Otherwise वो फिर वही डोमेन में घूम रहा है, knowledge, understanding, knowing, realizing, उस डोमेन में घूम रहा है ना? So did you get it? बोले Then you ask, so what did you get? And now he's looking इधर उधर. You know that eye accessing cues. You know that whether he's recalling or creating. Yes. So we'll come to the eye accessing cues also. This all eye accessing cue starts with this question. Good, good, good. So today we will be covering something very interesting, and this interesting thing is called internal representation. Okay, now, so what is your idea about internal representation? What do you think it is all about? I think it's about self-identity, what I feel about myself, whether I'm a winner, a loser, such type is what I'm assuming. My own. Internal representation. Internal representation. Okay. Hmm. Means whatever the things I'm grasping from all my sense organs, and what things, what I'm assuming, what the internal representation means. Suppose I saw any accident on the road, and how I'm grasping, because when a person see any event, what I will see, what you will see, what my daughter or every person, somewhere there is a difference. And actually that thing has not happened, but by seeing the things, how I'm grasping through all my sense organ, and what are the things again, it's getting inside my head after the delete and distortion. I think that is the internal representation. Okay, so let me clarify it. Internal representation is all about your thought about something.
Yeah, in the shortest way. To put it very simple, Yeah. you know what an apple is. Hmm. So if I ask you to write 5 sentences about apple, Hmm. these 5 sentences will be your internal representation of apple. Hmm. And how you have internally represented apple here. हमारे दिमाग में क्या है, इसमें ना लॉकर्स भरे पड़े हुए, these are all drawers, full of drawers. They are all drawers. And what we do, we keep something in that drawer. And the way we keep it, that is the internal representation of that particular thing. So like if I ask you to think about the horse or say something about the horse, whatever you say about the horse is your internal representation about horse. So like this, everything that we could think of, we have an internal representation of that. तो इस दिमाग का क्या काम है? इसका काम ये है कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा है, आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ महसूस किया, या आपने उसमें कुछ लॉजिकली उसको कुछ समझने की कोशिश की, और इसका जो निचोड़ होता है, सम ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज अ पिक्चर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और ऑफ दैट इवेंट, और उसको हम जहाँ पे स्टोर करते हैं inside the brain, that is the internal representation of that. Like you have an internal representation of yourself, but there are other members in the family, they have different internal representation about it, and they are not matching because it is their way of looking at things. So your way of looking at things is the internal representation of that thing. Like आपके दिमाग में पिनाकी जो है, किसी और के दिमाग में पिनाकी का पिक्चर बिल्कुल अलग है. It's not the same picture. Maybe some of them may match. That matching part may be hardly 5%. The remaining 95% is all about your own way of looking at it. आपका खुद का visual है, आपका खुद का auditory है, आपका खुद का kinesthetic है, आपका खुद का auditory digital है. If we talk about any fruit or any delicious thing, then उसके साथ smell और taste भी add हो जाता है. And that's how you remember that. Like कच्चा आम और पक्का आम में कैसे आप फर्क कर लेते हैं, है ना? Just with the taste. So the आम का internal representation बना हुआ है. There is a drawer. उस drawer के अंदर आम का internal representation बना हुआ है. अब उसके अंदर छोटे-छोटे और खाने हैं. The small chambers inside that drawer. उसमें एक drawer में खट्टा आम है, एक drawer में दशहरी आम है, एक drawer में सफेदा आम है, एक drawer में some और आम है. So you have different kinds of mangoes. किसी drawer में Alfonso आम है ना? So that's how you get to know there are so many types of alms can be. So when you're a child, first thing that you learn is आम, है ना? तो आपको पता होता है कि ऐसी चीज का नाम है आम. That is your first internal representation about आम, mango, है ना? So when you are a child, तब आपको किसी भी मैंगो आपको खिला दिया जाता था, सिर्फ एक नाम बोल के वो है मैंगो, है ना? कि ये आम है, ये आम है, ये आम है, ये आम है. And as you grow up, you discover that there is not one type of आम, there can be many types of mangoes. And then you learn, as you do more, you learn. अच्छा चलो इसको ये वाला आम बोलते हैं, इसको ये वाला आम बोलते हैं. So you discover different kind of mangoes. और ये सारे क्या होते हैं, वो जो बड़ा बॉक्स है, अब उस बॉक्स में आपने अलग अलग चेम्बर्स बना दिए और एक एक चेम्बर में आपने अलग अलग आम रख दिए. The moment somebody tells you कि ये आमरस है, अच्छा आमरस ऐसा होता है, ये मैंगो शेक ऐसा, मैंगो शेक ऐसा होता है. So there's so many different chambers in that same drawer, and each of these chambers represent about that particular aspect of mango. इसका हम बोलते हैं internal representation. Internal representation is all about how your brain has stored that information. Okay? और इस internal representation के साथ जो जो features associated होते हैं उसको हम बोलते हैं submodalities. We'll talk about submodalities tomorrow. Okay? So the whole thing is this is not only about mango, this is about anything and everything that you come across in your life. Okay? For example, when you travel to your school, so on the road there are some potholes. मान लेते हैं, I really do not know whether there are there or not, but if मान लेते हैं रास्ते में कहीं ना कहीं पे pothole है, you remember that if you are going there by a scooty or by a car, आपको पता है कि वो pothole कहाँ कहाँ पे है. But if you are not the driver, if you are just sitting on the pillion or you are sitting on the passenger seat, वो आपको नजर नहीं आएगा. वो सिर्फ गाड़ी चला रहा है उसको नजर आएगा. The road is the same. उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आपके पास जो है वो
जो चला रहा है उसके पास एग्जैक्टली सेम नहीं है। देन टॉक अबाउट द इवेंट्स, फॉर एग्जांपल से द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, उनका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आपके पास कुछ और है, किसी और के पास कुछ और है। सम टीचर्स दे ऑलवेज क्रिटिसाइज अबाउट दैट पर्सन, सम पीपल दे ऑलवेज प्रेज अबाउट दैट पर्सन, है ना। some people they are neutral about him or her. Okay, some people they only look at the good things that that person has done, or some people are like that, chalo usne ye decision le liya, now what we can do, what we are supposed to do now. So they are not even saying good, they are not even saying bad, neither they are neutral, but they are progressive kind of people, है ना। तो internal representation is all about how you store an information inside your mind, ठीक है। तो क्या होता है, द मोमेंट दैट इंसिडेंट कम्स अगेन in front of you, the only thing that you do is you just open the drawer and match it, and if it matches, ठीक है, if it doesn't match, then you change some part of that internal representation. मान के चले आपने अभी तक पिनाकी को सारी अच्छी अच्छी शब्दों में बातें करते हुए सुना, अभी पिनाकी को आपने कभी सुना नहीं को जब गाली देता है कैसे देता है ना? नहीं देखा ना? आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा ये बंदा ऐसा हो भी सकता है। अब मान के चलिए मैं बोकारो में गया, अब वहां पे मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे पता भी नहीं कि आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं वहां पे हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, और जब मैं उसके साथ अपने किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, आपका पूरा जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन था के बारे में वो थोड़ा सा बदल गया। यू विल स्टार्ट लुकिंग एट, अच्छा ये पिनाकी ही है ना या कोई और है ना, इज द सेम पर्सन, और मे बी उसको लुक अलाइक भी हो सकता है, लेट मी कंफर्म दैट इज द सेम पर्सन हु स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन, या शायद ये पिनाकी नहीं उसके साथ दिखता है ना, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वॉइस तो वैसा ही लग रहा है ना, चश्मा भी वैसा ही लग रहा है, बट द होल थिंग चेंज्ड, है। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। क्या हो रहा है कि द मोमेंट यू सॉ दैट, तो पिनाकी जिस ड्रॉअर में है आपके अंदर, उस ड्रॉअर को आपने खोल लिया, तो खोल के आप मैच करो इसके साथ, मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है यार, तो दैट मींस दिस इज न्यू और दिस इज ओल्ड, उसमें कुछ आप डिलीट करो, कुछ आप ऐड करो। Now this happens when we come across people, then when they say something bad about you and me, directly, maybe indirectly, maybe in front of others, maybe behind others. किसी ने आपको बोला कि राजेश्वरी आपको मालूम है कल सीमा मैम आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे थे, अब राजेश्वरी हैज अ वेरी हाई रिगार्ड्स अबाउट सीमा मैम। राजेश्वरी बोले यार वो हो ही नहीं सकता, बोले यार तुझे पता नहीं, वो बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है, लोगों के बारे में जब पीछे बात करते हैं ना, यू कांट इवन इमेजिन। अब क्या हुआ, सीमा के मैम के बारे में राजेश्वरी का पूरा आइडिया थोड़ा थोड़ा बदल गया। तो सीमा मेरे बारे में क्या बोला, मेरे बारे में, अरे मैं क्या बताऊं, आई कांट इवन यूज दोस वर्ड्स दैट शी टॉक्ड अबाउट, चलो बाद में बात करते हैं। नाउ यू आर वंडरिंग, ओ माय गॉड, ऐसी बातें की कि शी कांट इवन थिंकिंग ऑफ टॉकिंग टू मी, क्या बात की होगी मेरे बारे में, है ना। सो द होल थिंग चेंज, एंड नॉट ओनली दैट, द ओनली थिंग दैट यू आर थिंकिंग ऑफ इज definitely she has said something bad about me. The other person didn't say anything bad. She said, आपको पता है आपके बारे में क्या क्या बात कर रही थी. Now you started thinking. The only thing that the person said, आपको पता नहीं वो कैसी लड़की है, कैसी मैम है, कैसी लेडी है ना, वो सामने से कुछ और है, पीछे से कुछ और है, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कि मैं आपको बताता ही नहीं सकता. I can't bring those words in my mouth. अब आप सोचो आपका क्या हालत होगा, है ना. So you are creating new internal representations about it. Now what will happen when you meet that person face to face? Wahi Seema ma'am. Now you are wondering that is she the same lady? Should I ask her? उसने मेरे बारे में क्या क्या बोला होगा? I don't know. पता नहीं क्या बोला. Now what will happen if she ever says anything negative about anything? अभी आपके वही सारा नजर में आना शुरू हो जाएगा. Oh, अच्छा, she told me. सामने से कुछ और है, पीछे से कुछ और है. This is the person she is. है ना. ये सारे आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में ऐड होता गया, ऐड होता गया, ऐड होता गया, ऐड होता गया. नाउ आपके पास कंट्रोल है. अच्छा अगर मुझे सोचना है तो मैं अच्छा ही सोचूं, है ना, बुरा क्यों सोचूं. तो आप उनको बोल सकते हैं हाँ मुझे मालूम है यार, मेरे बारे में वो मेरे सामने अच्छी अच्छी बातें नहीं करते, लेकिन पीछे हमेशा मेरे बारे में अच्छी बात ही करते. एंड दैट इज द गुड क्वालिटी ऑफ हर, यू नो, लाइक मेरी जो कमी है वो मुझे ही सिर्फ बताती है, मेरे बारे में किसी और को नहीं बताती. लोगों को जब बताती है मेरे बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें बताती. हो गया ना पूरा डायमेट्रिकली चेंज. नाउ दैट अदर पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग, ओ माय गॉड,
मतलब राजेश्वरी को इतना रिस्पेक्ट देते हैं और मेरे को नहीं देते। तो आपने पूरा ही उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया ना, बाय सेइंग द वे यू सेड इट, कि आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड, लाइक शी इज सो गुड टू मी, कि मेरी जो भी कमी है वो हमेशा मुझे ही बताती है। और वो कोई बताते हो, आई रियली डोंट केयर, बट मुझे जो बताते उससे मेरा बहुत फायदा होता है, एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हर, है ना। तो वो कुछ और बोलने आई थी, आपने कुछ और उनको दे दिया, है ना। सो दिस इज व्हाट हैपेंस when you choose what you want to record about internal representation, about anything or any event or any person, any place. सेम रास्ता, सेम जगह, किसी को बहुत सुंदर दिखता है, किसी को बहुत गंदा दिखता है। यू गो टू अ मार्केट, मे बी अ फिश मार्केट, कुछ लोगों के लिए वो स्वर्ग है, दे लव टू बी देयर। मतलब सुबह सुबह नहीं गया तो आज मन नहीं भरा, है ना। और जिसको फिश पसंद नहीं है, वो उससे अगर 200 मीटर दूर रहेगा ना तो भी उसको खुजली होगी। So this is about all about internal representation. Now internal representations can be strong, internal representations can be weak, they can make you strong, they can make you weak. तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस है कि what kind of internal representation I want to create about anything and everything which is coming in my way. I have a choice. Now what are the choices? If I make good choices, then I will be always in an excited mode. I will be always in a mode where I am encouraged, inspired and motivated. If I am not doing that, then naturally I won't be in that state of mind. ठीक है, हमें हर चीज में अच्छाइयां ढूंढ के निकालना है। वाई? बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, गॉड ने हमें वो पावर दिया है, जो सोल का ओरिजिनल वर्च्यूज जो है, लाइक इवन दोज हु आर एसोसिएटेड विद ब्रह्मा कुमारीज, द सोल के जो ओरिजिनल जो 7 वर्च्यूज हैं, उनमें से एक भी वर्च्यू ऐसा नहीं है जो वीक वर्च्यूज है। ऑल स्ट्रॉन्ग वर्च्यूज, each one of them. You talk about happiness, it's a strong virtue. You talk about bliss, it's a strong virtue. You talk about love, it's a strong virtue. You talk about uh, uh, good thoughts, health, wealth, ये सब अच्छे अच्छे strong values हैं, strong words. They all have strong vibrations. तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि बाय डिफॉल्ट, अभी तक हमें इन्हें भी पता नहीं था, हमें पता नहीं था कि दिस इज व्हाट वी डू, this is how we create an internal representation of anything and everything which is coming in my way, in my life. Now with neurolinguistic programming, we have that power to choose कि हम किसी चीज का internal representation कैसे बनाना चाहते हैं. Now it is in my choice, in my hands. This is the biggest difference that we can enjoy when we actually apply, not only learn, actually apply neurolinguistic programming. Neurolinguistic programming is all about how you are programming your mind using the words that you speak. ठीक है, तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि whatever is happening in my life, I am creating an impression inside my mind somewhere. If I take control on it, rather when I take control on it, it's in my control. तब मैं चाहूं तो I can create an internal representation of anything, any person, any object, any event, any place, the way I want it. कोई भी मान के चलिए घूमने का जगह है, कहीं पे भी आप घूमने की जगह आप जाते हो, वहां पे बहुत सारे होटल्स होते हैं, वहां के जो लोग होते हैं वहां पे फॉर देम वन ऑफ देयर मनी मेकिंग ऑप्शन इज होटल्स, दे बिल्ड होटल्स। वो छोटा मोटा होटल से, डॉर्मिटरी टाइप होटल से शुरू करके 5 स्टार तक होटल होते हैं एट डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट प्लेसेस। कोई होटल वाला कभी बोलेगा कि मेरा होटल अच्छा नहीं, कोई भी बोलेगा, उसका कर्मचारी तक नहीं बोलेगा कि माई होटल इज नॉट लोकेटेड एट अ गुड प्लेस, इट इज नॉट लोकेटेड एट अ प्राइम लोकेशन। कोई नहीं बोला, हर कोई बोलता है कि माई रिसोर्ट, माई होटल इज एट अ प्राइम लोकेशन। हर एक का लोकेशन प्राइम, बहुत अच्छा लोकेशन, एकदम रास्ते के ऊपर ही है।
इट इज वेरी कन्वीनियंट। हाँ, वहां पे पार्किंग का भी अरेंजमेंट है, हो सकता है उसका खुद का पार्किंग नहीं है, आपको पार्किंग कहीं और करना होगा, बट वो बोलेगा हमारे पास पार्किंग का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। आपकी कौन सी गाड़ी है? वॉट एवर कार यू कम बैक, this is not the question of which car you are driving or by which car you are coming. The whole point is he is diverting your mind. That hotel owner or that person who is representing, आप उसको पूछो आपको वहां पे पार्किंग मिल जाएगा, द फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क दैट आपको वहां पार्किंग मिल जाएगा, पार्किंग का क्या अरेंजमेंट है, द पर्सन विल से आपके पास गाड़ी कौन सी। यू नोटिस दैट? तो वो क्या कर रहा है कि आपका जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है अबाउट दैट प्लेस, अबाउट दैट रिसोर्ट और अबाउट दैट होम स्टे, उसके साथ जो पार्किंग का अरेंजमेंट है उसका एक पिक्चर आपको देने की कोशिश कर रहा है। तो उसने आपको क्या पूछा, आपके पास गाड़ी कौन सी है, सो दैट नाउ यू फिट दैट कार इन दैट पार्किंग ऑटोमेटिकली। आप उसमें कोई भी गाड़ी बोलो, whether you talk about a SUV or whatever, even if you say Mercedes, आप बोले हाँ हाँ वहां पे बहुत जगह है, मर्सिडीज तो आराम से आ जाएगा। अरे कौन सा गाड़ी आराम से नहीं आएगा? सो वो आपको बोले आराम से आ जाएगा, हाँ हाँ हाँ, आराम से आ जाएगा, आप आओ ना। एंड देन धीरे आप कितने लोग आ रहे हो, कितने रूम चाहिए, है ना? एवरी मोमेंट दे विल लुक फॉरवर्ड टू change that internal representation that you are creating at that point of time about that place. Sometimes they might even ask you कि आप वहां पे कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या आपने तय कर लिया है? अगर आपने बोल दिया हाँ, तो बोला कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या जगह बोलेंगे, आप वहाँ तीन चार जगह का नाम बोलो, उसमें जो भी उसके होटल के नजदीक है वो बोले अरे ये तो हमारा होटल बिल्कुल इस स्पॉट के पास है, यहाँ से बिल्कुल 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर हमारा होटल। So you see how they're connecting? They're connecting with their car, they are connecting with the places that we will visit. अगर आप बोलोगे कि नहीं हमने अभी तक ठीक नहीं किया, बस हम गाड़ी लेके निकल रहे हैं आज रात, द वे वी डू, हमें कहीं जाना है हम बस मन बना लेते हैं निकल जाते हैं, रास्ते में जाते जाते तय करते हैं कौन सी होटल में जाएंगे, वो सारे दोनों बच्चों का काम, दोनों बेटियों का वही काम है, आप आइडेंटिफाई करो कहाँ पे जाएंगे कहाँ पे रहेंगे, हम निकल चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक दिन पहले हम बस वर्कआउट कर लेते, चलो कल हमें निकलना तो आज से, दैट्स हाउ वी डू। मेनी टाइम्स वी डू दैट वे। दिल्ली में वो एडवांटेज है कि आसपास बहुत जगह घूमने के लिए, दिन 200-300 किलोमीटर आपको बहुत जगह मिल जाएगा। और मुझे मतलब है गाड़ी चलाने से, आई रियली डोंट केयर हम कहाँ जाके रह रहे हैं, उसका उसमें 2 बेडरूम है, बिस्तर सही है नहीं, आई रियली डोंट केयर, माई होल इंटेंशन इज कि मैं कितनी देर गाड़ी चलाऊंगा। 300 किलोमीटर, वाह चलो, कम से कम 5 घंटा तो गाड़ी चलेगा ही चलेगा, है ना? बीच में 2 ब्रेक लेंगे, थोड़ा कहीं पे थोड़ा सा लस्सी पियेंगे, थोड़ा सा चाय पियेंगे। माई होल थिंग इज दैट आई डोंट इवन थिंक ऑफ अ होटल व्हेन आई गो फॉर एनी वेकेशन। बट लेडीज लोग, उनके लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो फर्स्ट थिंग दैट दे आस्क इज बाथरूम कैसा है। हमें तो बाथरूम से कोई मतलब नहीं है। सो आई लिसन टू द कन्वर्सेशन दैट दे हैव विद दोस गाइस। मैं बोलता है तू माइक्रो मतलब स्पीकर फोन में ऑन कर दे, लेट मी लिसन टू द कन्वर्सेशन दैट दे आर हैविंग। कन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज व्हाट इज इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑल अबाउट। You are constantly creating internal representation of anything and everything right now. And others are also doing the same about you, about your home, about your family. You know? Now, when you are conscious about it, then you can create it for the other person also the way you want it. उसको जो दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको क्या दिखाना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट। ठीक है? So internal representation works both ways. One is how I perceive things, how I create a picture about something. The other one is how others are doing about me and how I can manipulate it, how I can control it. Manipulate is not a bad word by the way. Manipulate का मतलब है कि आप अपने तरीके से उसको समझाने की कोशिश करो। Okay, in neuro linguistic programming, manipulation is all about reframing in a way such that empowers the other person. Okay, if you have any question, you can ask me.
वैसे तो मैनिपुलेशन तो बड़ा ही ऐसे वर्ड मानते हैं, जो भी कोई बोल दे यार मैनिपुलेट कर रहा है, बड़ा मैनिपुलेट कर रहा था, काइंड मतलब इट इज नॉट अ गुड वर्ड, आई व्हाट आई हर्ड टिल नाउ, इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ मतलब साउंड गुड कि मैनिपुलेशन के बारे में। प्लस फ्रॉम this talk what I got, that is we can change the internal representation of anybody by um our words, our uh, questions, you can say. You know, it means we can change the internal representation of the of anyone. Yes, like if you say दूसरी the same दूसरी thing, बात, हाँ आप दूसरी वो बात जगह आई यूज करेंगे तो और भी इफेक्टिव होगा। yes, yes, I can change the internal representation of anyone by choosing the right words, by choosing words smartly. हाँ जैसे आपने बोला कि कोई भी नहीं कहेगा, जैसे मैं बड़ा रिलेट कर रही थी, बात को रिफ्लेक्ट कर रही थी कि जब हम खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो बोलते हैं ना कि भैया ये अच्छा वाला दिखाओ, अच्छा वाला दिखाओ, बोलते बहुत बार बोलते हैं, इससे भी बेटर दिखाओ। उनके लिए तो सब, उनको तो सभी बेचना है ना, सभी बेटर है उनके लिए, तो बढ़िया वाला दिखाओ, है ना। तो अब मैं बड़ा रिलेट कर रही हूँ इस बात कि वो उनके लिए तो सभी अच्छा है, उनके लिए वो 200 रुपीज वाला भी, 1000 वाला भी, उनको तो सभी निकालना है, तो वो कभी भी नहीं बोलते कि ये अच्छा नहीं है। उल्टा हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जरूर चेंज कर देते हैं ये बोल कर कि मैम ये वाला ट्राई कीजिए, ये वाला ट्राई कीजिए जबकि एब्सोल्युटली। ये वही हो गया ना कि वो जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। सिमिलरली ये नहीं कि हम क्या देखना चाहते हैं, हम जो दिखाना चाहते हैं एक्चुअली इट मैटर्स, है ना। तो ये एब्सोल्युटली मतलब आज का सेशन थोड़ा इसके इर्द गिर्द ही था जो मुझे समझ में आया है। एग्जैक्टली 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 सी हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि पर्टिकुलर दोज ऑफ अस इन दिस कोचिंग बिजनेस, हम बोलते हैं कि हम लोगों से ना पैसे मांग नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा गिल्टी लगता है कि पैसे हम्म। कैसे मांगो, है ना। तो वहीं पे बात आ जाती है, यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग। व्हाट यू आर डूइंग बिफोर दैट इज यू आर जस्ट अप्लाइंग द आर्ट ऑफ प्रोमोटिंग। आर्ट ऑफ सेलिंग का मतलब उसके साथ उसको कनेक्ट करना है कि इसका वैल्यू कितना है। सी प्रोमोटिंग अ टॉपिक एंड शोइंग द वैल्यू ऑफ द टॉपिक आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो वैल्यू लोग कैसे ऐड करते हैं, आप सब्जी खरीदने जाओ, तरबूज खरीदने जाओ, बोले यार अंदर से लाल होगा, वो बोलेगा नहीं होगा, बोले हाँ मैडम होगा, मैं काट के दिखा दूं। अवले नहीं, काटने की जरूरत नहीं है, काटने का मतलब है कि आपको लगेगा अरे मेरी वजह से वो काट रहा है, अब उसको फिर मुझे लेना ही पड़ेगा चाहे लाल ना हो, चलो ले लेते हैं, कितना यार 50-60 रुपए की तो बात है, चलो अभी ले लेते हैं, है ना। ऐसा हम करते हैं। समटाइम्स हम पूछते हैं मीठा होगा। हाउ मेनी टाइम्स यू आस्क दिस क्वेश्चन टू अ फ्रूट सेलर? कोई भी फ्रूट खरीद रहे हो, हाउ मेनी टाइम्स यू आस्क दिस क्वेश्चन, मीठा होगा, मीठा होगा, चाहे वो आम हो, चाहे जामुन हो, चाहे लीची हो, कोई भी फल हो, अनार हो, तो आप इधर बढ़िया उधर वाला देना, बढ़िया सवाल वाला नहीं देना। पूछते, इधर उधर सारा सवाल पूछ के अंत में जाके आप ये एक सवाल जरूर पूछते हो, भैया मीठा होगा ना? तो भैया क्या बोलेगा, आप काट के ले जाओ, अभी खा दो, अभी खा के देखो, है ना। सो दैट इज द वैल्यू दे आर एडिंग, दैट इज द वैल्यू दे आर एडिंग। समटाइम्स गुड फ्रूट सेलर्स और फ्रूट सेलर्स दे आल्सो से कि मैम 80 रुपए किलो बेच रहा हूं, आपको क्या लगता है? उसने क्या किया, उसने आपके दिमाग में ये मैसेज दोबारा डाल दिया कि 80 रुपए किलो है, आप जल्दी से पैसा दो और लो। क्या बातें कर रहे हो, मीठी होगी कि नहीं, है ना। सब्जी खरीदने बोला अच्छा ये ताजा है ना, वो बोलेगा ताजा नहीं। कुछ कुछ लोगों को पता भी होता है, दे स्टडी यू। तो बिफोर यू आस्क दिस क्वेश्चन ये ताजा होगा कि नहीं, वो पहले ही आपको बोला मैम बिल्कुल ताजा, बिल्कुल मीठा, एक नंबर है। आपको पहले उसने वो तीनों सब मोडालिटी ऐड कर दिया। सुबह ही लाए हैं मंडी से और एकदम फ्रेश, ताजा भी बोलेगा, फ्रेश भी बोलेगा।
है ना। उसको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उसको पता है कि फ्रेश का मतलब ताजा ही होता है, उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है ना। उसने बोल दिया अगर मैं फ्रेश शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो और भी ताजा हो जाएगा, वो सिर्फ ताजा नहीं रहेगा, वो और भी ताजा हो जाएगा, ताजापन और ऐड हो जाता है ना। फिर बोलते हैं बिल्कुल फ्रेश है, adds that adjective also, बिल्कुल, है ना। So notice this is exactly the words that you need to use whenever you are selling something. See, selling is not always with money only. Selling is all about showing the value that the other person is looking for. उसको उसमें वैल्यू दिख रहा है, बट दैट पर्सन ओनली वांट्स टू कंफर्म दैट वैल्यू, है ना। सी इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, अभी भी बहुत लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बट दे आर आस्किंग मी, देयर सो many questions they have. Imagine this, just think about this thought कि 1500 रुपए खर्च करके, 2000 रुपए खर्च करके वो 7 दिन का रिस्क नहीं ले पा रहा, जबकि मैं उसको बोल रहा हूँ कि यू कैन टेक योर मनी बैक before we start the actual session, but even to attend those free sessions you have to make a payment. Imagine what kind of representation system they must be having. पैसे देने के बाद शायद वापस नहीं आते, ये हो सकता है। एक ये हो सकता है कि एक बार पैसे दे दे तो कैसे मांगू यार, 2000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं, आई कैनॉट आस्क, 1500 इज नॉट अ बिग मनी, आई एटलीस्ट पिनाकी के पास तो मांगना ही नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू तो वो ऐड करेगा ही करेगा। इतना कुछ सोच रहा है लेकिन फिर भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहा। सो दैट इज द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन अबाउट मनी इन हिज लाइफ, इन हिज थॉट्स। उसके ड्रॉयर में मनी का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन वैसा ही है, और उसके दिमाग में इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिनाकी भी वैसा ही है। नाउ ही इज जस्ट लुकिंग फॉर कॉमन थिंग्स। इन दोनों इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या कॉमन है, और जो कॉमन है, एम आई इमोशनली रेडी टू एक्सेप्ट दैट। विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ दीज थिंग्स। मतलब यहीं पे हम लोग जैसे ओरिजिनल एनएलपी हमने जैसे किया था कि वी वर अप्लाइंग सब मोडालिटीज टू चेंज द परसेप्शन ऑफ समथिंग। आई डोंट लाइक बिटर गुड, अब मैंने सब मोडालिटी चेंज कर दिया, मैंने उसको कुछ एक स्वीट प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर दिया, मे बी खीर के साथ रिलेट कर दिया बिकॉज आई लव खीर, so now I can even also have bitter gourd. Yeah, now since I have access to all those old recordings, जिसके साथ भी ऐसा सब मोडालिटी चेंज हुआ, when I am connecting with the same people, they are back to the same place. When they were in the session, तब तो bitter gourd change हो गया था, they started liking bitter gourd, but it didn't continue. After some time it went back to the same. मतलब क्या, सब मोडालिटी चेंज हुआ, we got a sense of it, लेकिन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं हुआ। The change in the internal representation was temporary. ठीक है, तो we will be working on that also a little bit, to some extent we'll work on that. So you got internal representation, right? I think that you really got a new way of looking at the whole thing, है ना, है कि नहीं। और हम दो बातें कर रहे हैं, it is not about my internal representation but I can also change it for others, about myself, मेरे बारे में जो internal representation दूसरे का है मैं उसको change कर सकता हूँ। Many times you can just do that by saying thank you to the other person, just by saying a thank you, just by asking a simple question, यार सच बताओ मेरे में क्या क्या कमी तुम्हें नजर आता है। People love to talk about the कमीज of people, है ना। लोगों के जो कमियां उसके बारे में लोग बातें करना बहुत पसंद करता है, आपने उसको मतलब खुला अपॉर्चुनिटी दे दिया। यार ऐसा तो नहीं कि मेरी हर चीज तुम्हें अच्छा लगता है, कोई ना कोई चीज तो होगा जो मुझे तुम्हें अच्छा लगता है, तो बोलो वो कौन सा चीज है, एक तो ही बोल दो सर। एंड दे व्हेन दैट पर्सन से वन और टू, फॉर एग्जांपल यू से थैंक यू। नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन यू इंटरैक्ट विद दैट पर्सन, यू नीड टू रिमेंबर इट कि उसने ये बोला था। And next time when you interact with that person, you tell that person, I am so thankful to you कि आपने वो बोला था, और
मैंने उस पर काम किया एंड उसकी वजह से आज आई कैन कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. सो कीप ऑन सेइंग दैट पर्सन. अभी क्या हो रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन अबाउट मी इज चेंजिंग. उसको लग रहा है कि यार कोई तो दुनिया में है जो मुझे थैंक यू बोला जब मैंने इसको क्रिटिसाइज किया, है ना. नाउ आई कैन आस्क यू अनदर क्वेश्चन. यार एक और बताओ, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत जबरदस्त है, एक और बताओ जो कमी मुझे तुम्हें नजर आती है मेरे बारे में. तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इंपॉर्टेंस दे दिया. उसका ऑब्जर्वेशन स्किल के बारे में उसका जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन था, अब वो थोड़ा सा बदल गया. है ना, बोले यार पिनाकी मेरे को बोल रहा है मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल इतना अच्छा है, दैट मीन सचमुच ही अच्छा है, मुझे पता नहीं था. और देखो मैंने ऑब्जर्व किया था एंड ही एक्चुअली वर्कड ऑन इट, मैंने उसके बारे में बोला था. नाउ इज आस्किंग मी अनदर वन, दैट मीन बाकी मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा है. क्या होगा, धीरे धीरे आपका ऑब्जर्वेशन स्किल इतना स्ट्रांग हो जाएगी, आप भूल जाओगे कि आपने कभी ऐसा सोचा भी था या कभी सोचते भी थे कि मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल इतना अच्छा है. दैट इज व्हाट इज प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड. सबकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग हो गया ना कि मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स है प्रीटी गुड. अब कल कोई और भी अगर बोलते हैं ना आपको, यार तेरा ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा नहीं है, हाउ विल कंपेयर इट. पिनाकी ने मुझे बोला था मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत सही. इसको पता नहीं मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल क्या है. And as you keep on practicing it, you will become a very good at observing things. फिर आपको कोई कुछ भी बोल देना उससे फर्क नहीं पड़ेगा. They cannot change that internal representation about you anymore. As far as observation skills are concerned, we can apply the same thing for students. बच्चों के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं. उनके जो भी कमियां हैं, जहां जहां पे उनको लगता है कि वीकनेस है, we can help them come out of that weakness by simply using the words which are strong enough to encourage, empower and motivate them in this path. है ना, पॉसिबल है कि नहीं. सारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का ही खेल है. बड़े बच्चों के साथ इतना इजी नहीं है, छोटों कह अरे लो. बच्चे कभी बड़े होते ही नहीं, कभी अरे उम्र बढ़ जाती है. फंडामेंटली वो 6-7 साल का ही बच्चा रहता है जो डिसीजन लेता है. बड़े बच्चों को ऑलरेडी लगता हम तो बहुत स्मार्ट हैं. लगना और भी चाहिए, होते भी हैं, ऐसा नहीं है अब तो. लगना भी चाहिए, हम्म. नहीं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप कर जाएगा. बिल्कुल नहीं, आई मीन टू से इन इन सेंस कि पेरेंट्स से हमेशा बच्चे स्मार्ट समझते हैं अपने आप को. जैसे मैं अपने ऊपर भी लूं तो मैं उसमें भी रिफ्लेक्ट कर रही हूँ. बट ये है, बच्चे अब तो और ज्यादा स्मार्ट है टेक्नोलॉजी के आने से तो. क्यों, है ना राजेश्वरी. बड़े बच्चे, मतलब बड़े क्या, बच्चे अपने आप को, एक 10 साल का बच्चा ही अपने पेरेंट्स से हाँ. ज्यादा स्मार्ट होता है ना. तो हम्म. इसलिए वो क्यों सुनेगा अपने पेरेंट्स की बात. वही बात है कि वो स्मार्ट बंदा अपने से कम स्मार्ट वाले लोगों की बातें नहीं सुनता. ये मेरा एक्सपीरियंस है. हाँ, यहीं पे यू कैन वर्क विद सब मोडालिटीज, यू कैन वर्क विद इंटरनल रिप्रेजेंटेशन. इट वर्क्स, आप कर सकते हो, पॉसिबल है, पॉसिबल है. ओके. वी विल कवर टू सम एक्सटेंट. इसको थोड़ा बहुत हम कवर करेंगे इस प्रोग्राम में. तो इट इज ओनली फॉर टीनेजर्स एंड वी विल कवरिंग इट एट अ वेरी एंट्री लेवल, बट एंट्री लेवल में भी हम अच्छी तरीके से इसको कवर करेंगे. ठीक है, ओके. एंजॉय. बाय बाय, थैंक यू. सुपर. ओके, बाय.